ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ਬੂਰ 52 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਰਸ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਵੇਖ ਤੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਸੱਚਾਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਸਿਖਾਵੇਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸੱਚਾਈ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਸਿਖਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖੋਜ ਸਕੀਏ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ ਏ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ
हालेलुया हालेलुया आओ इसी तरह ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦੇ Hallelujah, hallelujah. धन्यवाद यीशु, praise God, hallelujah. Thank you, Jesus. हालेलुया चांद सूरज की रोशनी हम नहीं करते दुनिया के मामलों के आगे नहीं झुकते क्योंकि जिंदा
खुदा के वचन विचों देखिए प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 4 कहावतां दी पुस्तक ਉਹਦਾ 22 चैप्टर ਅਤੇ ਉਹਦੀ 4 ਆਇਤ परमेश्वर ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਧੀਨਗੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਣ ਦਾ ਫਲ ਧਨ
ਆਦਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੰਬਰ 1 ਧਨ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੀਏ ਧਨ। ਨੰਬਰ 2 ਆਦਰ। ਨੰਬਰ 3 ਜੀਵਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਧਨ ਤੇ ਆਦਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਦੀ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਦੀ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਮਾਰਕਸ ਹਮੇਸ਼ਾ 90, 95, 99 ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਧਨ ਤੇ ਆਦਰ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰ ਕਰਨਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੀਏ। ਯੈਸ ਲਾਰਡ। सब कुछ मुहैया करता है, अपने जलाल की दौलत के मुआफिक, अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तेरे लिए सब कुछ यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है, यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है, यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है, यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। और अपने जलाल की दौलत के मुआफिक, अपने जलाल
ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਭਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਪਤਰਸ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਵਾਂਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਪਤਰਸ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਜਲਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਹ दूर कर देवे। आज आप सब अपने खुदा यीशु के सामने अपनी दरखास्तां रखेंगे। खुदा बाप सब अपना मुंह खोलिए, सब अपना मुंह खोलिए, सब दुआ करिए, दुआ करिए, अपने हाथ गिरे ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵਧਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ खुदा यीशु उसका साथ दे, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖਾਲੀ ਕਰੇ। खुदा यीशु ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੰਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਖੁਦਾ ਯੀਸ਼ੂ। खुदा यीशु ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ खुदा यीशु ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਤਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ खुदा यीशु ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹੈ। खुदा आसमान बाप ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਥ ਖੁਦਾ ਸ਼ੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇ ਜਲਦੀ ਰਹੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖਾਲੀ ਕਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਕਰ, ਅਮੀਰ ਵਾਈਫ ਦੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸੰਭਾਲ। ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ। ਜੋ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਰਾਜੂ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਮ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਖੁਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾ ਜੋ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ। ਤੁਹਾਡੇ हवाले अपने आप को खुदा यीशु कर देंगे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं आमीन। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮਾਣ ਦੇਣ। सलाम। आइए मिलकर सब खोलें बाइबल, जिनके पास है वो खोलें, जिनके पास नहीं है वो गौर से सुने। आज का जो टॉपिक है वो है एक दूसरे का भार उठाएं। क्या जी? एक दूसरे का भार उठाएं, कैरी बर्डन अदर्स। ठीक है, ये इसलिए मैंने बोला कि आपको थोड़ा जो मैं पढ़ूंगा हवाला फिर उसमें आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी समझने में। ये क्या है जी? एक दूसरे का बोझ उठाने। हालेलुया हालेलुया। मेरे साथ मिलकर खोले गलातियों की किताब, पौलुस रसूल का गलातियों के नाम लिखाकर उसका 6वां बाब और उसकी पहली 10 आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आपने बड़े ध्यान से इसको सुनना है। गलातियों 6वां बाब और उसकी पहली 10 आयत, उसमें यूं लिखा है, हे भाई, इसमें
बहनें भी सब शामिल हैं। यदि कोई आदमी किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसों को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। दूसरी आयत, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह यीशु की शरीयत को क्या करो? पूरा करो। आमीन आमीन। तीसरी आयत, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। आमीन आमीन। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। सो 1 से 10 तक जो मैंने हवाले आपके सामने पढ़े हैं, जिस पर हम गौर करेंगे वो है दूसरी आयत जो मैंने पहले बयान किया। तुम एक दूसरे का भार उठाओ या बोझ उठाओ। ऐसा करोगे तो हम अपने खुदा मसीह की व्यवस्था को क्या करेंगे? पूरा करेंगे। ये किसकी तालीम है? किसकी शिक्षा है? यीशु मसीह की ये तालीम है, शिक्षा है, टीचिंग है कि हम एक दूसरे का भार उठाएं। एक हवाला मैंने ये पढ़ा दिया आपको। ये किसकी है? यीशु मसीह की शिक्षा। अब इसके ऑपोजिट अब देखेंगे हम शैतान की शिक्षा क्या है। आइए मेरे साथ हवाला खोले, निर्गमन की किताब उसका 5वां बाब। गौर से सुनना है आपने। निर्गमन 5वां बाब और उसकी 4थी आयत। कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको पहले बता दूं, फिर उसके बाद में हवाला पढ़ता हूं। जब मूसा और हारून फिरौन बादशाह के पास जाते हैं, फिरौन से कहते हैं हमारे लोगों को रिहाई दे, हमें रिहा कर कि हम अपने खुदा के लिए पर्व मना सके। अब जो फिरौन है किसकी तस्वीर है? किसकी तस्वीर है? शैतान की। बोला करें जी। फिरौन जो रिप्रेजेंट करता है इब्लीस को, शैतान को। मसीह की तालीम हम एक दूसरे का भार उठाएं। अब शैतान की तालीम या टीचिंग क्या है? देखिए मेरे साथ। मूसा और हारून जाते हैं फिरौन के पास कि हमें जाने दे कि हम अपने खुदा के लिए पर्व मनाएं। तो फिरौन क्या कहता है? 5 बाब और उसकी 4थी आयत। मिस्र के राजा ने उनसे कहा, यानी फिरौन
ने कहा मूसा और हारून से, हे मूसा, हे हारून, तुम क्या लोगों से काम छुड़वाना चाहते हो? यानी तुम उन्हें झूठी तसल्लियां देते हो। तुम जाकर अपना अपना बोझ उठाओ। क्या करो? बोझ उठाओ। अपना अपना बोझ उठाओ। तो ये फिरौन किसकी तस्वीर? शैतान की। अब शैतान की टीचिंग क्या है? अपना 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 तो मसीह की शिक्षा क्या है? एक दूसरे का भार ਹੁਣ ਝਾਕੀ ਮਾਰਨੀ ਆਪਣੀ, ਝਾਕੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ, ਪੈਗਾਮ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨਸੀਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ देखिए, गौर करिए अपने थे। अब मसीह जो लासानी है, लासानी उस्ताद है, जिसका कोई सानी नहीं, जिसका कोई मुकाबला नहीं, जो लाखता है, वो कहता है एक दूसरे का बोझ उठाओ। तो शैतान की कहना अपना अपना बोझ उठाओ। हुण अब डिपेंड हमारे पे है कि असी की करना है। आज के दौर में इंसान इतना सेल्फ सेंटर्ड हो गया है कि उसे दूसरों को फिक्र ही नहीं। ऐसा ही है। इतना हिंदी में कहूं या कहूं खुद गर्ज हो गया है कि उसको अपने तो सिवा दूसरे का बोझ दिखता ही नहीं है। तेरा मतलब किसकी शिक्षा पे चल रहा है? बोलिए बोलिए। शैतान की। कह दीजिए शैतान की। अब तेरे हवाला पढ़ा दिया, नोट कर ले, पढ़ना है जाके। फिरौन कहता है तुम मूसा, हारून लोगों को झूठी उम्मीदें ना दिलाओ, जाओ अपना अपना बोझ उठाओ। मसीह कहता है एक दूसरे का बोझ उठाओ, और ऐसा करोगे तो तुम क्या करोगे? उसकी व्यवस्था को पूरा करोगे। उसकी जो शरीयत है, अगर हम एक दूसरे का बोझ, उसका बर्डन, उसका दुख, उसकी तकलीफ, उसकी पेन, उसकी प्रॉब्लम को उसके साथ इन्वॉल्व होते हैं, उसकी मदद करते हैं, तो हम मसीह की व्यवस्था को पूरा करते हैं। आमीन आमीन। अब सवाल ये है, हुण मसीह की व्यवस्था की है, शरीयत क्या है? यही वाला पढ़ा ना मैंने। फिर आ जाए गलातियों के, ताकि आप अच्छी तरह इसको समझ सकें। छठा बाब मैंने जो पढ़ा था उसकी चौथी आयत, दूसरी आयत, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। पूरा करो। अब मसीह की व्यवस्था क्या है? सवालिया निशान। मसीह की व्यवस्था जो है, जो शरीयत है, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, आपको हवाला बता दूंगा, नोट कर लें ताकि उसको मैं जल्दी से कवर अप कर दूं। वो यूहन्ना रसूल की अंजील और उसका 13वां बाब, उसकी 34वीं आयत में लिखा है। मसीह फरमाते हैं मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, वो ये है कि एक दूसरे से क्या करो? मोहब्बत रखो। जिस तरह मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, उसी तरह तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। मोहब्बत रखो। ये मसीह की क्या है? व्यवस्था है। मसीह कहते हैं मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से क्या करो? प्यार करो, मोहब्बत करो। जिस तरह मैंने तुमसे की है, उसी तरह तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत करो। आही प्रॉब्लम है, हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते, प्यार नहीं करते, उसके दर्द को, उसकी तकलीफ को महसूस नहीं करते। ऐसा ही है। और दूसरा हवाला है यूहन्ना 15 बाब, उसकी 12 आयत में भी आपको मिलेगा। मसीह ने कहा एक दूसरे से तुम क्या करो? मोहब्बत करो, जिस तरह मैं तुमसे करता हूं। आज इंसान, मैंने पहले बोला, इतना खुदगर्ज हो गया, इतना सेल्फ सेंटर्ड हो गया, वो अपने बारे में सोचता है, किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचता। इसका मतलब है
वो शैतान की तालीम को फॉलो करता है और उसका नतीजा क्या निकलता है? आज इंसान अपना ही बोझ उठा रहा है, दूसरों के दुख में शामिल नहीं हो रहा, तो इंसान ना उसको सुकून है, ना उसको तसल्ली है, ना उसकी जिंदगी में वो खुशियां हैं, ना वो शादमानी है, यानी डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, स्लीप डिसऑर्डर है, सो नहीं सकते, नींद नहीं आती, तरह तरह की मुश्किलों में फंसा हुआ है, जकड़ा हुआ है शैतान ने उसे। जिंदगी उसे ऐसी लगती है कि जिंदगी वो जी नहीं रहा, जिंदगी को क्या कर रहा है? गुजार रहा है, गुजारा कर रहा है, जिंदगी को जी नहीं रहा, मसीह जिंदगी देता है। हालेलुया, हालेलुया। वो जिंदगी जी नहीं रहा, वो गुजार रहा है। मेरे साथ एक हवाला देखिए, जिंदगी जब गलत दौर पे जा रही होती तो फिर होता क्या है, फिर इंसान बोलता क्या है? पर उत्पत्ति की किताब, पहली बाइबल की किताब, उसका 27वां बाब और उसकी आखिरी आयत, हवाला जो मैं पढ़ूंगा उसको बड़े गौर से सुनना है, स्पेशली जो नौजवान यहां बैठे हैं। बुक ऑफ जेनेसिस उसका 27वां बाब और उसकी 46वीं आयत, उसमें यूं लिखा है, फिर रिबका ने इसहाक से कहा, हित्ती लड़कियों के कारण मैं अपने प्राण से घिन करती हूं। क्या करती हूं? रिबका इसहाक से कहने लगी, मैं हित्ती लड़कियों के कारण अपनी जिंदगी से नफरत करती हूं। देख रहे, ये हाल होता है। कभी कभी जिंदगी जब सही चल नहीं ना रही होती तो फिर ऐसा ही कहते हैं। रिबका कहती है इसहाक से, मैं हित्ती लड़कियों के कारण अपनी जिंदगी से घिन करती हूं। अपनी जिंदगी से क्या करती हूं? घिन करती हूं, नफरत करती हूं। आगे देखिए, इसलिए यदि ऐसी हित्ती लड़कियों में से जैसे इस देश की लड़कियां हैं, याकूब भी एक से कहीं विवाह कर ले तो मेरे जीवन में क्या फायदा होगा? देख रहे हैं रिबका क्या कह रही? कहती उसके पहले लड़के ने तो हित्ती लड़कियों से शादी कर ली है, कहीं याकूब भी ना कर ले जिनसे मैं नफरत करती हूं, तो मेरी जिंदगी से क्या लाभ होगा? मैं जिंदगी का क्या लुत्फ उठाऊंगी? जिंदगी मेरे लिए क्या बन जाएगी? लानत बन जाएगी। मुबारक है वो बच्चे जो यूसुफ की तरह फलदार पौधे की तरह होते हैं। आमीन। मुबारक है वो बच्चे जो अपने मां बाप के लिए फलदार पौधे की तरह होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। देख रहे हैं बच्चे कई बार सोचते हैं कि हमारी जिंदगी इससे जुड़ी हुई है, ਅਸੀਂ अपनी जिंदगी को एंजॉय करने ਲਈ शादी जो होती है सिर्फ दो बदलों का नहीं, खानदानों का मेल होता है। माँ बाप लड़की के, लड़के के और उनका अपना खानदान भी उसमें जुड़ा होता है। ऐसे ही अभी देख रहे रिबका क्या कह रही है? कहती मेरी जिंदगी जो है वो क्या बन गई है? एक श्राप बन गई है हित्ती लड़कियों के कारण। वो अपनी जिंदगी से दुख में है, लानत में गुजार रही है अपनी जिंदगी, एक गलत फैसले की वजह से जो उसके लड़के ने लिया। कहती कहीं याकूब भी ऐसा ना कर ले तो फिर मेरी जिंदगी से क्या लाभ होगा? मेरी जिंदगी अंधकार में से निकल जाएगी। हालेलुया। इसी तरह अगर हम अय्यूब की किताब पढ़ते हैं तो अय्यूब भी कुछ इस तरह की स्टेटमेंट देता है। अय्यूब उसका 7वां बाब और उसकी 20वीं आयत देखिए मेरे साथ। अय्यूब की किताब निकालें और उसका 7वां बाब और उसकी 20वीं आयत। अय्यूब कहता है, अय्यूब 7:20 आयत,
हे मनुष्य पर नजर रखने वाले, मैंने पाप तो किया होगा, पर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। अय्यूब देखे क्या कह रहा, उसका बिजनेस खत्म, फैक्ट्रियां खत्म, बच्चे खत्म, सब कुछ उसका तबाह हो गया। और बीवी जो थी वो भी उसकी मुखालफत करने लगी, उसके खिलाफ हो गई। अब ऐसा बंदा जिसका सब कुछ ही चला गया, तो वो स्टेटमेंट क्या दे रहा है, तो क्या होगा, पर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, तूने क्यों मुझको अपना निशाना बना लिया है, यहां तक कि मैं अपने ऊपर आप ही बोझ बना हूं। मैं अपने ऊपर आप ही भार यानी बोझ बना हूं। उसका सब कुछ खत्म हो गया, उसे जिंदगी जो है एक भार नजर आ रही है, बोझ नजर आ रही है, उसका सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। जिस तरह रिबका कह रही है, मैं हित्ती लड़कियों के कारण अपनी जिंदगी से नफरत करती हूं, इसी तरह वो कहता है, मेरा जीवन, मेरी जिंदगी मेरे ऊपर बोझ हो गई है। इसी तरह कुछ हम भी स्टेटमेंट देते हैं, ਅਸੀਂ कई बोलते नहीं हाँ, पर अंदरों अंदरी महसूस करते हैं। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ दुखों से गुजरते हैं, कुछ ऐसे दुख होते हैं, कभी ऐसे हालात हो जाते हैं, हम दूसरों को नहीं बता सकते, तो हम ऐसे मन ही मन सोचते हैं, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ खुदा किते मैनू जाकी ले, मैं इस दुनिया तो मैनू खुदा ले जाए, मेरे को ये बर्दाश्त नहीं होता। आपको मालूम है यीशु मसीह ने सामरी औरत से क्या कहा था, अगर तू जानती तू किससे मांगती है, किससे बात करती, तो तू उससे मांगती, वो तुझे जिंदगी का पानी देता। हालेलुया, हालेलुया। क्या देता तुझे? जिंदगी देता। हमारा खुदा जिंदगी देता है, जिंदगी नहीं लेता, बल्कि बहुतायत की जिंदगी देता है। हालेलुया, वो कसरत की जिंदगी देता है। ऐसा हमारा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। वो कैसी जिंदगी देता है? हाँ, कसरत की जिंदगी देता है। कभी अपनी जिंदगी को बोझ ना समझे। हालेलुया, हालेलुया। जबूर 68 और उसकी 19वीं आयत, उसमें क्या लिखा है, दाऊद क्या स्टेटमेंट देता है। दाऊद कहता है, साम 68 वर्ष 19वीं आयत कहता है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। देख रहे, दाऊद बादशाह था, बादशाह के ऊपर आप जब अंदाजा लगा लें कि बादशाह पर कितना बोझ होगा, हुकूमत का, अपने अवाम का, लोगों का, अपने परिवार का, बच्चों का, वो अपना बोझ आप नहीं उठाता है, असी अपना बोझ आप ही उठाई लेते हैं। ऐसे ही असी के नहीं, अपना बोझ असी आप ही चक्की फिरते हैं। दाऊद कहता है, धन्य है मेरा खुदा जो हर दिन हमारा बोझ उठाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये उसका एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है जो वो शेयर कर रहा है। कहता, मैं उस बादशाह खुदा की इबादत करता हूं जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है। तो वो अब आपने क्या करना है, अपना बोझ आप नहीं उठाना। अगर हम अपना बोझ आप उठाएंगे तो नतीजा पता क्या होगा, फिर तरह तरह की बीमारियों से हम जकड़े जाएंगे। जकड़े भी होंगे क्योंकि हम गलत नींद को फॉलो करते हैं। मैंने पहले बयान किया, कईयों को डिप्रेशन, एंजाइटी, स्लीप, सो नहीं सकते, दवाइयां खाते सो दिया। वजह क्या है, रात को जो बर्डन होता है वो उनको सोने नहीं देता। दाऊद क्या कहता है, मुबारक है मेरा खुदा
जो हर रोज हमारा, कल्ला मेरा नहीं, हर सबका, किसका? हमारा। अब मसीह ने पता क्या किया? हे सब बोझ से दबे लोगों, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। किन किनको का? सबको, सबको इनविटेशन दिया, सबको। मसीह को पता सी कि इंसान की सोच ऐसी है, इसीलिए मसीह ने पहले कह दिया कि हे सब थके और बोझ से मंदे दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। नंबर 1 कि हमने अपना बोझ आप नहीं उठाना, उठाएंगे तरह तरह की बीमारियां, गूगल पे सर्च कर ले, हर बंदा ब्लड प्रेशर ना फंसया गया, पता नहीं किड़ियां बीमारियां शाहां लगियां हुई है। वजह पता क्या है? असि फिर सोचे डॉक्टर को जाने, डॉक्टर ने क्या करना? दवाई दे देनी आपको, आप खाओ। तो बेहतर है कि आप बोझ को छुटकारा, रिलीफ हो, जो मन का आनंद है ना, कलाम में पता क्या लिखा है? जो मन का आनंद है वो सबसे बड़ी औषधि है। क्या है जी? औषधि, यानी हिंदी में वो दवाई है। औषधि ना समझ आए तो सबसे बड़ी दवाई है मन का आनंद। अगर आप खुश हैं तो ये सबसे बड़ी मेडिसिन है। डॉक्टरों की मेडिसिन तो भी बढ़िया है। ये ब्लड प्रेशर जिन्ने भी है, सारिया चीज़ां जो भी है जिन्नियां जुड़ियां हुई हैं सोचण दे नाल, वो सब तो तुसी आजाद हो जाओ। आमीन आमीन। वो कहता है मुबारक है मेरा खुदा जो प्रतिदिन मेरा बोझ उठाता है। जबूर 55 उसकी 22वीं आयत, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे क्या करेगा जी? बोलिया करो जी, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे और वह तुझे पालेगा। देख रहे हैं जी? क्या स्टेटमेंट दे रहा है, क्या जबरदस्त स्टेटमेंट दे रहा है। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। जब हम अपसेट होते हैं ना तो हमें कोई अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते। मैंने पहले कह दिया, जब आप परेशान होंगे, मन आपका खुश नहीं होगा, आप परेशानियों से घिरे होंगे, बोझ से दबे होंगे, डिप्रेशन में फंसे होंगे, आप कभी भी कोई अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते। इसीलिए अपने खुदा पर अपना बोझ डाल दे। इंसान की यीशु मसीह जो है, इंसान की उसके लिए बहुत बड़ी वैल्यू है, जानते हैं? इसीलिए मसीह ने कहा एक दूसरे का बोझ उठाओ। इंसान जो खुदा की नजर में बहुत वैल्यूबल है। एक हवाला मैं आपको पढ़ूंगा, आप उससे अंदाजा कर लो कि इंसान जो है खुदा की निगाह में कितना कीमती है। देखना आज आइए मेरे साथ निकालें निर्गमन की किताब, उसका 23वां बाब और उसकी 5वीं। आपने शायद सवाले को पढ़ा होगा। इसीलिए मसीह कहता है एक दूसरे का बोझ उठाओ। निर्गमन 23वां बाब और उसकी 5वीं है, उसमें यूं लिखा है निर्गमन। अगर आपके पास नहीं बाइबल तो आप नोट कर ले ताकि इसको पढ़ सकें, आपको मालूम पड़ सके। निर्गमन 23वां बाब और उसकी 5वीं है, फिर यदि तू अपने बैरी के गधे को बोझ के मारे दबा हुआ देखे, देख रहे हैं, यानी अपने दुश्मन के गधे को बोझ से दबा हुआ देखिए, तो चाहे उसको उसके स्वामी के लिए छुड़ाने को तेरा मन ना हो, देख रहे, चाहे तेरा मन ना हो तो भी अवश्य स्वामी का साथ देकर उसे छुड़ा लेना, उसे छुड़ा लेना। देख रहे, गल केरी हो रही है, गधे और गधे का नकामी बोझ उठाना है। सवालिया निशान, सवाल निकाला गया इससे। अब गधे का क्या हुआ? गधे ये जानवर क्या होते? बोझ ही उठाते हैं ना। आपने देखा कहीं गाय बैलों को
यहां पर उसके वो जुआ डाला होता है और टनों के हिसाब से उस पर बोझ लदा होता है। आपने कभी देखा होगा, कई बार तो यहां जानवरों के जख्म हुए होते हैं, तब भी वो बोझ उठा रहे होते हैं। तो खुदा कितना ध्यान देता है इसमें। अगर तू अपने दुश्मन के गधे को देखे, उस पर बोझ दबा हुआ है, अगर तेरा दिल ना भी करे तो अपने स्वामी की मदद करना, उसे बोझ से देख रहे गधे की क्या वैल्यू। खुदा वो आम गधा नहीं, वो गधा भी किसका? बैरी का। देखिए मसीह की शिक्षा क्या है। गधा भी दुश्मन का, बैरी का, उसे भी उस बोझ से छुड़ा लेना। इंसान से खुदा इतनी मोहब्बत करता है, क्यों करता है? उसको अपनी सूरत पर उसने बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर मसीह की शिक्षा क्या है? एक दूसरे का बोझ उठाओ। खुदा तो गधे की नहीं फिक्र कर रहा है, तो इंसान को तो उसने अपनी सूरत पर बनाया है। हालेलुया। तो फिर खुदा क्या कहता है? एक दूसरे का बोझ उठाओ, अपना ही उठाओ। आज तो एक सबक लेके जाना, साल का दूसरा हफ्ता है। अभी हमने साल बड़े हमने कई बनाए होंगे कि हमने ये करना है, हमने वो करना है, उन्होंने छो आ करना शुरू कर दो। आमीन। नहीं, वो भी करें। हाँ, मुझे नहीं पता आपने क्या किया, अच्छा ही किया होगा, कोई बुरा नहीं किया होगा, पर ये चीजें हमारी आत्मिक उन्नति के लिए भी अच्छी है। हालेलुया। एक दूसरे का क्या करें? बोझ उठाएं। हालेलुया। बोझ उठाने, अब सवालिया निशान, बोझ उठाने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। अब मैंने आपको बोझ उठाने का बता दिया। अब दो प्रिंसिपल्स बताऊंगा बाइबल में से। अब बोझ उठाने के लिए हमें क्या करना है? असि क्यों नहीं बोझ उठाते? हम क्यों सेल्फ सेंटर्ड है, यानी खुद गर्ज है। हम अपने ही जात पर फोकस करते हैं, अपने पर ही ख्याल करते हैं, दूसरे के दर्द में हम शामिल नहीं होते, दूसरे के दर्द को अपना दर्द नहीं समझते। उसकी वजह क्या है? दो प्रिंसिपल्स मैं आपको दूंगा। नंबर 1, हमारी आंखें जिस तरह मसीह देखता था उस तरह हम नहीं देखते। क्या जी? जिस तरह मसीह देखता था उस निगाह से हम एक दूसरे को नहीं देखते। मेरे साथ मिलकर निकाले निर्गमन की किताब, उसका 2 बाब और उसकी 11वीं आयत। आज हवाले पढ़ा रहा हूं ताकि हमको कहीं है ना सोचे कि तुसी एवं बोली जाता है। हवाला आपको पता होगा तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। निर्गमन और उसका 2 बाब और उसकी 11वीं आयत। पहले मैंने बोला 2 प्रिंसिपल मैंने आपको दे दिए हैं। पहला प्रिंसिपल, हमारी देखने वाली आंखें जिस तरह हमारा खुदा देखता था। देखिए 2 बाब निर्गमन, दूसरी किताब ओल्ड टेस्टामेंट में 11वीं आयत। ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ। अच्छा, मूसा की जो परवरिश थी कहां हुई थी? शाही महल में। शाही महल में वो जवान हुआ, वहां उसकी परवरिश हुई, वहां वो बड़ा हुआ। अब जिस बंदे की परवरिश जो हो एक महल में हो रही, वो भी शाही महल में, तो बंदे की बात सुनिए। ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा। हालेलुया। अपने भैना भरावां ने, अपने भाई बंधुओं के दुखों पर निगाह करने लगा। देख रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात? अब ये बंदा जवान महल में हुआ, अब वो बाहर निकला है तो जो लोग उसके थे, उसके भाई बंधु थे, इब्रानी थे, वो दुखों से गुजर रहे थे, तो उनके दुखों को वो देखने लगा। पता किस निगाह से देखने लगा? जिस तरह खुदा देखता था। वो देखने लगा इनके दुख इनके नहीं, ये मेरे भी दुख हैं। हालेलुया। उसे क्या परवाह थी? वो तो शाही महल में परवरिश हो रही थी, उसकी जवान हुआ था, उसे क्या पड़ थी?
वो उनके दुखों को में शामिल हुआ। उसने कहा ये हमारा बोझ है, ये इनका बोझ नहीं है। उनके बोझ को अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर निगाह करने लगा। तब उसने देखा कि एक मिस्री जन उसके एक इब्री भाई को मार रहा है। फिर उसने जिस्मानी हथकंडा अपनाया। जिस्मानी हथकंडा लाकर उसने उधर देखा कि कोई नहीं है, तो उस मिस्री को मार डाला और रेत में छिपा दिया। इंसानी हथकंडा उसने, जिस्मानी हथकंडा जो उसने अपनाया। गौरतलब बात यह है कि उसने अपने भाई बंधुओं के दुखों को देखा। तो हमने भी क्या करना है? जिस निगाह से हमारा खुदा देखता था, उसी निगाह से हमने भी दूसरे के दुखों को देखना है। अगर हमारी निगाहें ऐसी नहीं है तो आज खुदा से कहें हमें ऐसी आंखें दे, हम एक दूसरे को देख सके जिस निगाह से तू देखता था। अगर आप अपना ही बोझ उठा रहे हैं तो आप फिरौन की तालीम को फॉलो कर रहे हैं। आमीन। दूसरा हवाला, टाइम हो गया, मैं इसको जल्दी क्लोज कर दूंगा। लूका रसूल की अंजील और उसका 10वां बाब, उसमें आपको एक एग्जाम्पल मिलेगी, एक इंसान मिलेगी। पता किसकी मिसाल मिलेगी? कलाम में लिखा है एक शख्स यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था। लूका 10वां बाब गालबन 30वीं आयत होगी, आप पढ़ लेना, आप और से सुने। वहां लिखा है, पहली बात जिस निगाह से यीशु देखता था। दूसरा प्रिंसिपल, आपको एहसास करना है, महसूस करना है, फीलिंग्स आपने अंदर पैदा करनी है, इमोशंस पैदा करने हैं, जिस तरह हमारा खुदा फील करता था। कलाम में लिखा वो भीड़ को देखता था तो तरस से भर जाता था। वो कभी उन्हें कहा कि मैंने इतना तरस खाना, वो भर देखता था उन भेड़ों को जिनका कोई चरवाहा नहीं है, तो वो उनके लिए, उनके तरस से भर जाता था उनके लिए। हालेलुया। तो आपने अंदर एहसास पैदा करना है, फीलिंग्स महसूस करना है। कलाम में लिखा है यरूशलेम से एक आदमी यरीहो की तरफ जा रहा, लूका 10 का। तो लिखा है डाकुओं ने उसे लूटा, उसका सब कुछ छीन लिया, लूट लिया, उसे मारा पीटा और अधमरा करके वहां पर छोड़ गए। क्या करके छोड़ गए? अधमरा करके उसे छोड़कर चले गए। तो वचन में लिखा है वहां से एक याजक गुजरा, यानी कि पास्टर्स आज की जुबान में कहते हैं। तो याजक ने देखा और पंजाबी के अंदर कन्नी कतरा के सेल्फ सेंटर्ड, खुदगर्ज, वो कतरा कर चला गया। और उसके बाद एक लेवी आया, यानी पुराने अहदनामे का सिखाने वाला टीचर। उसने देखा, वो भी उसको देखकर चला गया। उसके अंदर दर्द नहीं, एहसास नहीं, फीलिंग्स नहीं, महसूस नहीं किया उसने उसके दर्द को, वो अधूरा था। तो कलाम में लिखा है और उसके बाद एक ऐसा शख्स जो क्या था, सामरी था, जो विश्वासी में नहीं था, जो जिनसे यहूदी क्या करते थे, नफरत करते थे। और लिखा है जब सामरी वहां से गुजरा तो उस शख्स को देखा तो उसके अंदर एहसास, उसने उसके दर्द को महसूस किया, उस फीलिंग्स को उसने, उसके कलाम में लिखा है उसने उसके मरहम पट्टी की, उसके दर्द को फील किया, उसकी मरहम पट्टी लगाकर उसको उठाकर एक सराय में लेके जाता है और सराय में जाकर उस
शख्स को देता है किसी को और उसे कहता है इसकी देखभाल कर और कुछ पैसे देता है और मैं जा रहा हूं और जब वापस आऊंगा तो जो तेरा पैसा लगेगा वो भी मैं तुझे भर दूंगा, दे दूंगा। ये मसीह की तस्वीर है। हालेलुया, हालेलुया। कहता है देख रहे इसके बंदे के अंदर दूसरे के लिए दर्द है, एहसास है, फीलिंग्स है, इमोशंस है। वो कहता कि मेरा ही नहीं है कि मैं देखो मैं नुकिले देना। देख रहे हो उसने उसे उठाया। उसका भाई बंधु नहीं था, उसका मामा चाचा नहीं था, बच्चा बच्ची नहीं थे, अनजान था, पर उसने मरहम पट्टी की और पैसा भी जेब से लगाया, पैसा भी जेब से लगाया। हम एक तो मसीह की तरह देखते नहीं, दूसरा उस तरह हम महसूस नहीं करते जिस तरह हमारा खुदा महसूस करता था। जनाजे से जाने गए होंगे, कभी देखे, कभी ऐसे जनाजे से गए होंगे कि ताड़ा कोई रिश्तेदार भी ना होगे तो रो पे होंगे होते। वजह है कि आपने उस दर्द को महसूस किया, ये वजह है। आप जनाजे में कहीं गए हो तो किसी के दर्द को आपने महसूस किया हो तो आपकी आंखें नम हो जाती हैं, आप भी रोने लग जाते हैं क्योंकि आप उस इमोशंस को फील करते हैं, आप महसूस करते हैं, एहसास करते हैं। तो मसीह का व्यवस्था क्या है? एक दूसरे का भार उठाओ, इससे तुम मसीह की व्यवस्था को, शरीयत को पूरा करोगे। फिरौन क्या कहता है? अपना अपने आप। अब सवालिया निशान कि मैं कौन सी तालीम को फॉलो कर रहा हूं, अपना बोझ उठा रहा हूं या मैं दूसरों के बोझ भी उठा रहा हूं। सवाल का हमने आगाज किया है। आज खुदा से कहें, खुदा हमें तेरी शरीयत व्यवस्था जो है उस पर चलने की तौफीक दे, हम एक दूसरे का भार उठाएं, क्योंकि मसीह, अगर हम एक दूसरे का भार उठाएंगे तो हम अपने खुदा की व्यवस्था को पूरी करें। अब आखिरी हवाला, आज इंसान का सबसे बड़ा बोझ पता क्या है? भार पता क्या है? आज इंसान का सबसे बड़ा भार जो उसकी बीमारियों का कारण है, उसकी परेशानियों का कारण है, वो भी आप नोट कर लें। जबूर 38 उसका निकालें, जबूर 38 और उसकी ज़बूर नंबर 38 गालबन उसकी 20वीं आयत, साम 38 और उसकी ज़बूर 38 और उसकी 3री आयत, उसमें यूं लिखा है, मैंने आपको बोला, बड़े गौर से सुनिए, इंसान का सबसे बड़ा बोझ क्या है? जबूर 38 उसकी 3री आयत, और मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं रहा। किसके कारण? पाप के कारण। मेरे नापाकी के कारण मेरी हड्डियों में कोई भी चैन नहीं रहा। और 4थी आयत, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और वे भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गया है। हालेलुया। मेरे पाप के कारण और मेरे अधर्म के कारण मेरा भार जो सहने से बाहर हो गया है। आज इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा बोझ वो है उसकी नापाकी और अधर्म, ये उसके लिए सबसे बड़ा बोझ है। अगर आप इस बोझ से छुटकारा चाहते हैं या दूसरों का छुटकारा चाहते हैं तो आपको खुदा की तालीम को फैलाना होगा और उसकी तालीम पर अमल करना होगा। आमीन आमीन। तो सबक क्या है जी? एक दूसरे का भार उठाएं, अपना नहीं भी उठाना, अपना भी उठाएं पर सेल्फ सेंटर्ड ना। हालेलुया हालेलुया। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, अपनी आंखें चंद लम्हों के लिए बंद कर दें
और कुछ लम्हों के लिए, चंद लम्हों के लिए कलाम पर गौर करें। हालेलुया। आज खुदा ने हमसे अपने कलाम से बात की है। हालेलुया। खुदा से कहें हालेलुया, खुदा बाप तेरे बेटे यीशु के नाम से आज हमने तेरी रोशनी, तेरे कलाम की रोशनी ने खुदा मेरी जिंदगी, जो मेरी रूहानी आंखों को खोल दिया है। हालेलुया। मैं आज उस भेद को, उस प्रकाश को मैं समझ सकता हूं। हालेलुया। क्या तेरी शरीयत है, क्या तेरी व्यवस्था है कि मैं एक दूसरे का बोझ उठा सके। हालेलुया। आज खुदा से कहें हालेलुया, खुदा हमें हिम्मत दे, तौफीक दे कि मैं एक दूसरे का बोझ उठा सकूं। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। आज खुदा से कहें हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। अपना बोझ खुदा को दे दे। हालेलुया। उसने कहा अपना बोझ मुझे दे। हालेलुया। अगर आप किसी बोझ से जकड़े हुए हैं, आप किसी बीमारी से जकड़े हुए हैं, डिप्रेशन से हो सकते हैं, एंजाइटी से हो सकते हैं, तो आज अपना बोझ अपने खुदा को दे दे। हालेलुया। वो आपको रिहाई देगा। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। आए हम ऐसे ही खड़े रहें और खुदावन के हुजूर में उसके नजराने चढ़ाएं। जीवन देने के लिए यीशु बुलाता तुम्हें। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवन देने के लिए मेरा यीशु बुलाता जीवन देने के लिए मेरा यीशु बुलाता हालेलुया, 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 हालेलुया।
और मैं हमारे ब्रदर राहुल से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे आए और आज की ऑफरिंग के लिए दुआ करें। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें। अति पवित्र पवित्र दयायोग्य परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस सारे समय के लिए जब आपने हमें ये समय दिया है, आपकी करुणा के लिए और प्यार के लिए जब आपने हमें संभाला। और प्रभु इस समय हमें एकत्र किया ताकि हम तेरी महिमा और तेरे नाम को जलाल दे सकें। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु, जो हमने सीखा है कि हम तेरे नाम की महिमा करें। और प्रभु जिस प्रकार आपने प्रभु हमारे बोझ को उठाया, उसी लिए हम भी एक दूसरे का बोझ उठाएं, तेरे नाम को महिमा दे, तेरे नाम की प्रभु चर्चा करें अपने बहन और भाइयों में। तेरे शुक्रगुजार हैं प्रभु इस सारे समय के लिए, जब प्रभु आपने हमें ये समय दिया मेरे परमेश्वर कि हम अपनी भेंटों को तेरे पास लेके आ सके। और प्रभु अपनी भेंटों को यीशु मसीह के लहू के वसीले से आपके सामने रखते हैं कि आप यीशु मसीह के नाम से प्रभु इस भेंट को कबूल करें प्रभु, और अपने बच्चों के ऊपर ऐसी दया और अनुग्रह करें कि तेरे नाम की महिमा प्रभु हो और ये भेंट प्रभु तेरे कामों में प्रभु इस्तेमाल हो, तेरे राज्य के लिए प्रभु, और तेरे काम प्रभु बढ़े और तेरा राज्य यीशु मसीह के नाम से स्थान में फैले। प्रभु तेरा धन्यवाद करते इस कलीसिया के ऊपर बड़ी दया और अनुग्रह करे प्रभु, बुद्धि दे, समझ दे और अपने काम करने का प्रभु वो ही आप दे, ताकि हम तेरे कामों में बढ़े प्रभु। नौजवान बच्चों और बड़ों को प्रभु तेरे हाथों में सौंप देते हैं, तेरे दास को तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। बड़ी बरकत दे प्रभु, और आने वाले समय के लिए हमें तैयार करे ताकि हम तेरे राज्य की बाट जोड़ने वाले बने। तेरा धन्यवाद करते हैं सब भलाइयों के लिए, सब आशीषों के लिए, और ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। और मैं पास्टर जी रिक्वेस्ट करूंगा कि पास्टर टीम मैनेजमेंट ऑन और आखिरी प्रार्थना ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕरें। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा यीशु जिंदा है, ਉਹਦਾ ਕਲਾਮ जिंदा है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦੇ ਸੀ, खुदा यीशु ने सानू जिंदे कीता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा दे बच्चों, जब खुदा यीशु सानू मुर्दे विचों जिंदे कीता है तो इस चीज़ को ਅਸੀਂ समझे कि ਅਸੀਂ की करना है। इसलिए सानू ਅਸੀਂ एक दूसरे ਦਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ है एक दूसरे ਦੇ ਉੱਤੇ है बनना चाहिए है, क्योंकि खुदा यीशु ने साडे भी ਭਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਦਾ
करिए कभी भी मुर्दे लोग नहीं महसूस करते दूजे लोगों ने करना ना मुर्दा जरा दूजिया उत्ते ध्यान दिंदा है ना ही मुर्दा जरा दूजिया की केयर करता है ना ही मुर्दा जरा है अपनी फीलिंग दस सकता है ना दूजिया की फीलिंग जी वो सुन ही नहीं सकता समझते मेरी गल ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਕੀਤਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 खुदा का धन्यवाद करिए इस कलाम में खुदा ने सेवक ने भी आज के कलाम में जरा खुदा ने सामने दिता है धन्यवाद खुदा में यीशु थोड़ा धन्यवाद खुदा में यीशु हालेलुया आइए अपन दुआएं बंद करें हमारे बाप जो तो आसमान में है तेरा नाम पाक माने जावे तेरी बादशाह आवे तेरी मर्जी जिस तरह आसमान तक होती है जमीन ते भी होवे साडी रोज रोटी आ सब दे साडे कसूर माफ कर जिस तरह से दूसरे दे कसूर माफ कर दिया सानू अन्याय में गुनाह जान दे खुदावंद बल्कि प्यारे समझा एक बादशाह कुदरत जलाल हमेशा ही तेरा है आमीन अब खुदा में यीशु का फजल खुदा बाप की मोहब्बत पाक दी फकर सारे सारे दे नाल हुण तो हमेशा तक होंदी रहे हालेलुया